आज़म बैतुल माल के 50 साल पूरे होने पर यहाँ पे आज़म पब्लिक स्कूल फाइवलाइट सर्कल में एक जनरल हेल्थ चेकअप कैंप रखी गई है, जहाँ पे पैम्पलेट में सबसे पहला नाम डॉक्टरों में आपका ही आता है। इस मौके पर आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I feel very happy that Azam Baitul Mal has decided to conduct a medical camp for poor patients to mark its 50 years of service in the city. This is a landmark achievement because many organizations they failed to achieve this target of reaching the 50th year, and Azam Baitul Mal has managed to do it thanks to the dedication, the zeal, the enthusiasm and the cooperation of all the people who have worked to keep it going over all these years. I feel extremely happy to be a part of this medical camp here today, and I feel happier than this that this organization has achieved this milestone in its successful march. सर, आपके पिता भी जो है इस बैतुल माल का एक हिस्सा रह चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि उनके जो हिस्सा रहने पर आप भी जो है इसका हिस्सा बनकर आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? I am very happy that my father was one of the founder members of this organization, and in fact a few other members of my family, my close relatives also were responsible for starting this organization. And though my father is no longer alive, I feel very happy that many other members who started this organization are still involved in its work actively, and they are continuing to serve here. And as far as my father's participation is concerned, because I felt that my father was doing the right thing by joining this organization and supporting it and helping it to grow, I feel it is my moral duty to continue the same legacy and be a part of this organization in whatever activities it does, and I take a lot of pride and pleasure in doing it. सर, आज के माहौल में जो है कहीं भी देखा जा रहा है कि वायरल फीवर है, थ्रोट इन्फेक्शन है हो रहा है, फिर सोशल मीडिया में भी चंद जगह आया है कि फिर लॉकडाउन होने के भी अंदेशे दिखाई दे रहे हैं, चाइना में भी हालात ख़राब हैं। इस मौके पर लोगों को आप क्या अपील करना चाहते हैं और वो किस तरह की जो है वो मेंटेन करना चाहिए सर उनकी लाइफ? There is no doubt a wave of viral infections going on across the country and maybe across the world also, and particularly so in China. But there is no need for us to panic. The unfortunate COVID period has taught us all how to be careful, how to take precautions, and how to prevent ourselves from catching any kind of a viral infection. That knowledge, that training and that experience should continue to keep us alert and see that we do not become a prey to these infections. But I don't see this new infection as a very serious threat like COVID. Inshallah, this will not be a very big problem if we take the minimum basic precautions that are required, and I'm sure people will understand what is expected of them and continue to keep those precautions in mind and follow them very correctly. If we do this, I'm sure the coming days will show us that the viral infection will pass off without creating much problem in the society. हमें आपका वक्त देने के लिए केवी न्यूज़ आपकी आभारी है, हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। Thank you very much. I also felt very happy to be a part of this small bite that you are taking, and I wish this endeavor success, and I wish the Azam Baitul Mal management continues this tradition of holding medical camps in different areas of the city, especially where the poor and downtrodden people live. Inshallah, when they do this, I would be very happy to be a part of this endeavor and take my time off from my regular work and spend a little while here to help them in doing it. Thank you. बैतुल माल ने जो है 50 साल पूरे कर चुकी है, और इसी के ज़रिए से जो है आज यहाँ पे आज़म पब्लिक स्कूल फाइवलाइट सर्कल में कैंप लगाई गई है,
तो इस मौके पर आप यहाँ एक डॉक्टर की हैसियत से लोगों को देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कैंप का पेशेंट्स का रिस्पांस कैंप में बहुत अच्छा है, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है। हम 150-200 का एक्सपेक्टेशन रखे थे, मगर अल्लाह के फजल से पब्लिसिटी अच्छी हुई है। एक 3 या 4 दिन पहले केवी न्यूज़ और दूसरे चैनलों के ज़रिए से भी पब्लिसिटी हुई है और पैम्फलेट्स के ज़रिए से भी पब्लिसिटी अच्छी हुई है, तो अनएक्सपेक्टेडली अच्छा टर्नआउट है। और क्योंकि आपको पता है 50 साल के सेलिब्रेशंस का एक आगाज़ है ये कैंप, और 10 तारीख को जो है एक और जगह पर राजीव नगर में, शांति नगर में गालिबन एक और कैंप है, और वहाँ भी हम इसी तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि कैंप को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। सर, आप न सिर्फ कैंप को आए हुए हैं, बल्कि आप भी एक बैतुल माल का एक हिस्सा हैं, जो पिछले कई सालों से आप आज़म बैतुल माल की क्लिनिक में जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज आपको कैसा लग रहा है सर कि आप एक संस्था में रहकर उसी संस्था के 50 साल पूरे होने पर एक कैंप में आप हिस्सा ले चुके हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? ये काबिल फ़ख्र बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बैतुल माल का एक हिस्सा हूँ। तकरीबन 1998 से क्लिनिक से वाबस्ता भी हूँ और छोटे मोटे खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि क्लिनिक का एक एक्सटेंशन है ये कैंप, और हम यहाँ पर जो भी पेशेंट्स देख रहे हैं उनको मुफ्त अद्वियात फराहम करने के अलावा उसी आज़म बैतुल माल क्लिनिक को रेफ़र भी कर रहे हैं कि आइंदा कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वहाँ पे आके मज़ीद फॉलोअप करा लें। तो इट्स अ रियली गुड फीलिंग टू बी पार्ट ऑफ द बैतुल माल ग्रुप, and whatever little contributions I have been able to make, I hope and pray that Allah accepts those small contributions. सर, आप कुछ लम्हों के लिए आप भूल जाएं कि आप एक डॉक्टर हैं। आप इस बात को गौर कीजिए कि आपके पिता जो है पिछले 50 सालों से लगभग 40 साल उन्होंने जो है बैतुल माल के लिए दिए हैं। तो इस मौके पर उनके आप बेटे होने के नाते इस 50 साल पूरे होने पर आज़म बैतुल माल में आज यहाँ पे आप बैठकर जो डॉक्टर का काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? दूसरे तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ में जहाँ मेरे वालिद प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब मेरे लिए एक रहनुमा, मेरे लिए एक लीडर इंस्पिरेशन रहे हैं, उसी तरह आज़म बैतुल माल में भी न सिर्फ मेरे वालिद बल्कि मेरे मामू प्रोफेसर एम.जे. सादिक साहब भी जो है, जो फाउंडर मेंबर हैं और 1974 से राइट फ्रॉम डे वन वाबस्ता हैं। तो दोनों मेरे लिए एक जो है एक राहबर हैं और इंस्पिरेशन भी हैं, और उनके नुख़ुश पाक को जो है फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उनकी दोनों की उम्रें दराज करे और बेहतर से बेहतर खिदमत उनसे और लें, और हमारे लिए वो इंस्पिरेशन बनते रहें। और उनकी एनर्जी लेवल्स जो हैं कंपेयर टू द एनर्जी लेवल्स दैट दे हैव, आई पर्सनली फील दैट आई हैव वेरी लार्ज शूज़ टू फिल, and I feel that at the age of 55 I am not doing the sort of work that they are doing at the age of 85. तो दोनों मेरे लिए इंस्पिरेशन हैं। और हमारे नौजवान जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नईमुल्लाह शरीफ साहिब भी लिए जो हैं, जो एक गुज़िश्ता 5-6 साल से जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मेरे लिए वाकई इंस्पिरेशन है। उनका एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अशख़ास जो हैं मेरे लिए इंस्पिरेशन साबित होते रहें और मैं उनके नक्शे कदम पर चलता रहूँ। आने वाली 8 दिन में भी जो है कैंप रखी गई है जी, क्या उसमें भी आप हिस्सा ले रहे हैं? जी इंशाल्लाह। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर शाहीन अख्तर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, वर्किंग इन वेरियस हॉस्पिटल्स अटैच टू मणिपाल हॉस्पिटल मैसूर। तो आज़म बैतुल माल के 50 साल होने की खुशी में जो आज हेल्थ चेक ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत खुशी हुई इसमें अटेंड करके, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लोगों को इसका फ़ायदा होना, ये हेल्थ कैंप का स्पेशली ऑफ्थैल, गायनेक और फिज़िकल चेकअप जो भी चल रहा है उनका, लोग अपने रेगुलर रूटीन वक्त छोड़ के आके यहाँ पे हेल्थ कैंप अटेंड कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, और आई विश प्रोग्राम अ ग्रेट सक्सेस। मैडम, आज यहाँ पे आपके रिलेटेड कौन से पेशेंट्स, कैसे पेशेंट्स आपको जो देखा? स्पेशली लेडीज़ जिनको पीरियड्स के प्रॉब्लम्स हैं और बॉडी वीकनेस है, पोस्ट मेनोपॉज बोलते हैं, जब महावरी टिकने का टाइम आता है तो उनको जो वीकनेस आता है, दे नीड लॉट ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, तो वो सप्लीमेंट्स हमें सप्लाई कर रही हैं आज उनको।
और यूजुअली जिनको फिर बच्चे नहीं हो को हैं दैट टाइप ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो थोड़े आको हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली गायनिक में वोच पेशेंट्स देखते हैं सर। आपने अभी अभी कहा कि जो है आयरन की ज़रूरत होती है लेडीज़ प्रेग्नेंट जी, लेडीज़ को, जी। क्या इनकी जो खाने की डाइट की वजह से जो है ये प्रॉब्लम होती है? सही है, स्पेशली डाइट बहुत वीक है और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली डाइट में आजकल हम लोग जो बहुत ऑयली फूड खा रहे हैं, चिकना, और उसमें ज़्यादा स्वीट्स जो घर में भी बना रहे हैं, एक्सटर्नल स्वीट्स भी ले रहे हैं, तो उसमें स्पेशली विमेन को वेट गेन हो रहा है। और हेल्दी एक्सरसाइज नहीं रहने के वजह से उनका जो है बॉडी मास इंडेक्स, जो मसल मास है, वो कम होने के वजह से डायबिटीज़, शुगर, ये सभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं। उसके बाद में हम लोगों को कैंसर्स देखने को मिलता है। सो दैट्स द रीज़न विमेन को, स्पेशली विमेन हेल्थ के हिसाब से एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 आवर ऑफ ब्रिस्क वॉक एवरी डे। और फूड में यू हैव टू मैनेज कि ऑयली कम होना चाहिए, स्वीट्स कम होना चाहिए, और फूड में हर तरह की सब्जी, तरकारी और ज़्यादातर प्रोटीन इंटेक करना है, जो हमारी औरतें नहीं करती हैं। बीट भी, अंडे, मच्छी, चिकन, ये सब चीज़ें में औरतों का मसल मास बढ़े रहता है, इसलिए आगे चल के उनको हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता, शुगर नहीं आती। ये और कैल्शियम सप्लीमेंट करना है, विटामिन्स लेना है। खून की कमी औरतों को होती है तो उन्होंने आयरन सप्लीमेंट्स के ज़रिए, या तो गोलियां हो या तो इंजेक्शन हो, उसके ज़रिए उन्हें अपना आयरन फुलफ़िल कर सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये जो है डेली रूटीन जो है वॉक को डेली रूटीन बनाना है, क्या बस ये काफ़ी है? अगर हम लोग समझते हैं कि हम घर का काम कर रहे हैं और एक्सरसाइज है, तो वो बिल्कुल नहीं है। जैसे आपने बोला 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज औरतों को अपने लिए देना है, और वो एक्सरसाइज उसमें ब्रिस्क वॉक होना चाहिए, फास्ट वॉकिंग, ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर सकता है अपने घर में, और सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइक मसल वेट्स उठाना चाहिए औरतों को, बीट भी वाटर बॉटल पे भी 1 kg 2 kg वेट, तो ये मसल्स बढ़ने की हेल्प होती है। यूट्यूब में सारे वीडियोस आते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। जिम को जाना ही ज़रूरी नहीं है, घर पे भी थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं औरतें। अपने स्टमक एब्स वर्कआउट होते हैं, और हाथों के, पैरों के वर्कआउट करेंगे तो उनके जो बैक एक है, क्रोनिक लेग प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे आगे चल के कम होते हैं। आखिरी सवाल है मेरा जी, कि आज जो है एक ट्रेंड बन चुका है, एवरी वीकेंड को जो है लोग जो है स्ट्रीट फूड्स खाने चले जाते हैं, डेफिनेटली। तो क्या ये हार्मफुल है? डेफिनेटली स्ट्रीट फूड इज़ हार्मफुल। आजकल हम फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, और स्विगी जोमेटो में भी ऑर्डर करके खा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रीट फूड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइजीन इज़ नॉट मेंटेन, इन्फेक्शंस, बच्चों को गट इन्फेक्शंस होते हैं। दूसरी बात, इसमें वेरी हाई कैलोरी फूड विथ नो न्यूट्रिशन होता है। तो एवरी वीकेंड शुड बी अवॉइडेड। डेफिनेटली घर पे बनाओ और खाओ, जो भी हेल्दी है। 15 दिन में आप घर में एक बार बनाएंगे तो दैट इज़ मोर हेल्दी दैन बाइंग फ्रॉम आउटसाइड एंड ईटिंग। आप बच्चों को मैदा खिला रहे हैं, अनकुक्ड प्रोसेस्ड फूड खिला रहे हैं, जो बच्चों के लिए भी आगे चल के अनहेल्दी होगा। ये हम लोगों को डाइट में से चेंज करना पड़ेगा। आपने आपका कीमती वक्त हमारे इस न्यूज़ चैनल के लिए दिया, और हमारे न्यूज़ चैनल के व्यूवर्स को आपने जो है एक बेहतरीन टिप्स दी है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर आसिया खानम, आज आप जो है आज़म बैतुल माल के 50 साल पूरे होने पर आज़म पब्लिक स्कूल 5 लाइट सर्कल पर एक कैंप में आप भी आए हुए हैं। आपके ससुर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, वो एक फाउंडर मेंबर हैं आज़म बैतुल माल के। आज आप इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी आज़म बैतुल माल ट्रस्ट को, जिन्होंने 50 साल मुकम्मल अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस मौके पे उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हमें अपने सर्विस रेंडर कर सके, और हमें भी थोड़ा खिदमत का मौका दिया है। और मैं इनकी ट्रस्ट के लिए बहुत खुश हूँ कि 50 साल इन्होंने बहुत सर्विस की है, और दुआ है अल्लाह ताला के हमेशा क़यामत तक इनका इदारा जो है ऐसे ही बरकरार रहे। और शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। और कैंप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है। उम्मीद है आइंदा भी ऐसे कैंप ये लोग करते रहेंगे। तो आज यहाँ पे आपको किस तरीके के पेशेंट्स को देखने का मौका मिला? पेशेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे तरह के पेशेंट्स हैं। जनरल पेशेंट जैसे सर्दी बुखार के भी हैं, और गायनिक भी है, बच्चे भी हैं, और टाइप्स ऑफ पेशेंट्स हमारे हैं। तो ये अगले 8 दिन के बाद फिर एक आज़म बैतुल माल फिर एक कैंप लगाने वाला है, तो क्या उस कैंप में भी आप जो है भागीदारी रहेगी? इंशाल्लाह ज़रूर। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं वहाँ भी अपना रोल प्ले करूँ, और जितनी सर्विस मेरे तरफ से हो सके मैं रेंडर कर सकूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका घराना हो या आपका ससुराल हो, जी। तो भी जो है
सोसाइटी के लिए बाकायदा काम करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपसे सवाल यह है कि आजम बैतुल माल के अलावा दूसरे कई संस्था भी अगर कैंप लगाएं तो आपको इनवाइट करें, तो क्या आप वहाँ पे भी जाकर खिदमत करना चाहती हैं? इंशाल्लाह ज़रूर, पहले भी मैंने ऐसे कैंप्स कर चुकी हूँ मैम, और आइंदा भी अगर मौका मिला तो ये मेरी खुशनसीबी होगी कि अपने कौम के लिए मैं कुछ कर सकूँ, और इससे बड़ी सर्विस आई डोंट थिंक सो आई कैन डू एनीवेयर एल्स। आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया और केवी न्यूज़ के लिए आपने जो बात किया है इसके लिए हम आभारी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर जुनैद सिद्दीक जो है, आपकी जो क्लिनिक है वो लश्कर मोहल्ला में है। आपके पिता जो है आजम बैतुल माल के एक फाउंडर मेंबर हैं। आज 50 साल पूरे होने पर आप भी यहाँ पे कैंप में आए हुए हैं। इस कैंप में जो है आप भी भाग लिया है, तो इस मौके पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं 50 साल का जो ये सेलिब्रेशन है, ये 50th ईयर है, उसकी इफ्तिदा ये मेडिकल कैंप से हुई है। इससे बढ़कर कोई और अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि हेल्थ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी कम्युनिटी के लिए और सारी कौमों के लिए। अगर हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, तो हर कौम का, हर आदमी का फ्यूचर अच्छा होगा, घर में अच्छा होगा, काम में अच्छा होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ इधर जो कैंप किए हैं ये बहुत अच्छा काम है, और मुझे इधर आके बहुत खुशी महसूस हो रही है। सर, आपके पिता जो है आजम बैतुल माल के एक फाउंडर मेंबर होने की हैसियत से आप उन्हीं की संस्था में आकर जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं, क्या आपको फख्र महसूस हो रहा है सर? हाँ, मुझे तो बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे अब्बा साहब जो हैं 50 साल से इस इदारे का खिदमत कर रहे हैं, और वही फाउंडर मेंबर भी हैं जो शुरू किए थे 73-74 में। तब से लेकर आज तक बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबकी कोशिश के साथ ये इदारा बहुत मशहूर और आगे बढ़ा है। हमें भी इसको और आगे ले जाना है, इसलिए हमें भी ये काम करके बहुत खुशी मिल रही है। आने वाले दिनों में जो है आपका भी सहयोग बैतुल माल के साथ रहेगा सर? हाँ, हमारा तो जब से हम होश संभाला है हमारा बैतुल माल के साथ सहयोग है, आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। हमारे बच्चों को भी ऐसी तरबियत देंगे कि वो भी हमारे बाद कौम की खिदमत करें, कौम को, दूसरी कौम को, सभी लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें। सर, आज आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स आए थे सर? आज तो बहुत सारे लोग कमज़ोरी, दर्द, बुखार के लिए और आँखी की कमज़ोरी के लिए, जैसा इधर आँखों का भी मुफ्त चेकअप चल रहा है, और शुगर के पेशेंट्स थे बहुत सारे। तो मैं समझता हूँ आजकल के माहौल में ये शुगर, बीपी बहुत आम हो गया है। ये सब वो खाने पीने का, लाइफस्टाइल का कमसरस जो है, वो लाइफस्टाइल के नतीजे से शुगर, बीपी बहुत आम हो रही है। तो वो लाइफस्टाइल का ख्याल रखना चाहिए। सर, आजकल जो है वायरल फीवर जो है बहुत आम हो चुकी है, थ्रोट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कहीं कहीं ये भी बताया जा रहा है कि चाइना में वायरस फैला हुआ है। हाँ। तो यहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि दूरी अभी भी इख्तियार में रखें, और घर में जैसा खांसी है, सर्दी है, साबुन अलग होना चाहिए, टुवाल अलग होना चाहिए, और किसी के भी मुंह पे छींकना नहीं, खांसना नहीं, या हाथ रख लें या रुमाल रख लें। छोटे बच्चों से दूरी रखें। 2-4 दिन इतना एहतियात कर लेंगे तो पूरा घर महफूज रहेगा। तो मास्क का इंतजाम, मास्क जो है इस्तेमाल करने से फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। सर, आपने जो है आपका कीमती वक्त हमें दिया, और केवी न्यूज़ के लिए आपने जो बात किया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, नाइस मीटिंग। सर, आप जो है बैतुल माल के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। 50 साल पूरे होने पर यहाँ पे आजम पब्लिक स्कूल में एक कैंप रखी गई है। हमें ये देखा गया है कि यहाँ पे जो है आपको वक्त होने की वजह से जो है गेट को बंद करने के बाद भी पेशेंट्स आ रहे हैं। आज आपके लिए खुशी का मौका है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अल्लाह का फजल है कि इस चीज़ों में हमारे खिदमत देने का अल्लाह से हमारे से खिदमत ले रहा है। इंशाल्लाह इसी तरह का और एक कैंप हमारा आइंदा हफ्ते भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9 बजे हमारे रफ़ीउद्दीन कासिमी साहब की तरफ से दुआ का इंतजाम हुआ।
फिर हमारे इदारे के सदर मोहम्मद जाफर सादिक साहब ने इस कैंप का इनाग्रेशन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 से पहले ही बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर आकर बैठकर इंतजार कर रहे थे। तो जैसे ही इनाग्रेशन हुआ तो 9:15 बजे से पेशेंट की लगातार कतार लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नंबर जो है 224 पेशेंट्स एनरोल कर चुके हैं। तकाजा और ज्यादा है, देखेंगे अगर हो सके तो एक और आधा घंटा आगे बढ़ाकर इंशाल्लाह दूसरे पेशेंट्स को हम लोग इंशाल्लाह पूरा करेंगे। सर यहाँ पे पेशेंट्स को देखने के बाद उनको मुफ्त दवाइयाँ भी दी जा रही हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेशेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं उनको देखकर उनके अगर जरूरतमंद है तो उनको 3 दिन की दवाई है, यहाँ से 3 दिन या 5 दिन जो भी है उनकी नौयत के हिसाब से उनको दवाइयाँ भी दी जा रही है। तो इन लोगों को जो है आगे फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए फॉलोअप के लिए हमारे 2 क्लिनिक्स हैं। ये एक साड़े रोड में ये हमारी क्लिनिक आजम बैतुल माल क्लिनिक, फिर इसी तरह एक साबिरा खानम मेमोरियल आजम नर्स क्लिनिक जो शांति नगर में मौजूद है। यहाँ दोनों पर हमारे इन सर्विस डॉक्टर्स जो हैं, इन हाउस डॉक्टर्स, एक डॉक्टर इरफान अहमद रियाजी और एक जो है डॉक्टर नौरीन नरगिस, इन दोनों की निगरानी में ये फॉलोअप होगा इंशाल्लाह। सर देखा गया है कि अक्सर आप हर दिन जो है प्रोफेसर रियाज अहमद के साथ में आजम बैतुल माल की दफ्तर में जो है आप दिखाई देते हैं कि आप उनके स्टूडेंट भी रह चुके हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर आज? अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरा मुझे बड़े फख्र का एक मौका है। मैं अपने आप को बहुत एक शुक्रगुजार महसूस करता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं सर के साथ रहने का मुझे मौका मिला है और मैं फख्र भी महसूस करता हूँ इसलिए कि मैं उनका शागिर्द भी रहा हूँ। मैं उनके पास पीयूसी पढ़ने जाता था, फिर वहाँ से ही उनके साथ जुड़ने का मौका हुआ और जैसे ही मैं बैतुल माल में मेरा इंक्लूजन हुआ वहाँ से उनके साथ जुड़कर बहुत सारे कामों में जुड़कर काम करने का, फिर अब्रॉड जाने का उनके साथ मिलकर मौका हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निगरानी में, उनके गाइडेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है और बहुत सारे काम हम मिलकर करेंगे। सर आने वाले दिनों में क्या आपके फ्यूचर प्लान्स और इसको एडवांस करके करने का इरादा रखें? इंशाल्लाह इसके लिए क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रियाज अहमद साहब हो या हमारे सादिक साहब हो या नूर अहमद खान साहब हो, ये जितने भी हमारे बड़े हैं इन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी हैं बैतुल माल के काम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हमारे नौजवान साथियों से जो हमारे हम उम्र हैं इनसे भी मैं इल्तमास करता हूँ कि इस तरह के कामों में जुड़े हमारे साथ ताकि हम इसको और आगे बढ़ा सकें। तो इन लोगों ने अपनी जिंदगियां देकर 30-30 साल 40 साल, हमारे सदर साहब 50 साल बैतुल माल को लगा चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इसको और आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती देने के लिए यंग जनरेशन जो हमारे साथियां हैं, 2 दोस्त हमारे सुन रहे हैं, उनसे भी मैं इल्तमास करता हूँ कि वो आए और जुड़कर इसको और आगे बढ़ाने के लिए अपने तासुरात पेश करें, अपने ख्यालात पेश करें और अपने आइडियाज को दें, किस तरह और इसको आगे बढ़ा सकते हैं करें। इंशाल्लाह बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी इसी हफ्ते के अंदर, इसी महीने के अंदर आखिरी हफ्ते में स्कूल के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होने जा रहे हैं। फिर जनवरी के महीने में भी कॉम्पिटिशन्स होने जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह फरवरी के महीने में हमारा गोल्डन जुबली फंक्शन होने जा रहा है। तो इसका और आगे बढ़ाना है, किस तरह बढ़ाना है, इंशाल्लाह इसका और प्रोग्राम बनाएंगे। सर लैब फैसिलिटीज भी यहाँ पे है? अल्हम्दुलिल्लाह लैब फैसिलिटीज के लिए हमारा एक पैथोलॉजी लैब जो साड़े रोड में मौजूद है, इसमें हमारे 2 टेक्नीशियंस हैं। फिर उसके एक हमारे फॉर्मर टेक्नीशियन जो मोहम्मद अयूब साहब हैं, माहिर हैं। तो इन चारों लोगों की खदमात लेकर यहाँ पर HB टेस्टिंग हो रहा है, फिर RBS रैंडम शुगर हो रहा है, फिर इसके साथ साथ BP टेस्ट हो रहा है, सैचुरेशन हो रहा है, सैचुरेशन का फिर पल्स मीटर भी देखा जा रहा है। तो इसके लिए एक डॉक्टर नूर HB टेस्ट, हाँ HB भी हो रहा है। एक डॉक्टर जो अभी इंटर्न है डॉक्टर सैयदा नूरुल हुदा, उनके खिदमात लेकर BP वगैरह टेस्ट किया जा रहा है। फिर उनके साथ साथ हमारे जो पैथोलॉजी की टीम है ये बाकायदा पूरे टेस्टिंग कर गाइड करके डॉक्टर्स के पास अलग अलग भेज। इस कैंप में जो भी डॉक्टर्स आए हुए हैं, वॉलंटियर्स आए हुए हैं, इन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के साथ की वजह से ये काम मुनक़िद हुआ है और कामयाब भी हुआ है। मैं इस मौके पर हमारे बैतुल माल के सारे मेंबरान का फ़र्दन शुक्रिया गुजारता हूँ और उनसे उम्मीद भी करता हूँ कि अगले कैंप में भी इसी तरह हमारे साथ जुड़ें। इसके साथ साथ हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, उसका मैं सिर्फ शुक्रिया के इससे गुजार नहीं सकता। उनके बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। फिर भी मैं इदारे की जानिब से, मैं अपनी जानिब से हमारे सारे डॉक्टर्स की टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके अंदर डॉक्टर जावेद नईम हैं, डॉक्टर इरफान अहमद रियाजी हैं, डॉक्टर जुनेद हैं, डॉक्टर शाहीन अख्तर साहिबा हैं, फिर डॉक्टर आसिया खानम हैं, डॉक्टर नौरीन नरगिस,
डॉक्टर सैयदा नूरुल हुदा, ये सारे डॉक्टर्स के खिदमात की वजह से ही ये काम मुकम्मल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुआ है। तो इसके साथ साथ हमारी जो टेक्निकल टीम है, जिसमें जैसे कि हमारे मैनेजर आसिफुल्लाह खान साहब, नदीम अहमद खान साहब, मुफस्सिर अहमद साहब, फिर हमारे इरफान साहब और जाफ़र साहब, ये जितने भी हमारे साथी हैं, ये इन्हीं की मदद की वजह से, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, टेक्निकल सपोर्ट के बगैर कोई भी काम हो नहीं पाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोगों के टेक्निकल सपोर्ट की वजह से ये कामयाब हुआ है। इंशाअल्लाह इन सब लोगों के खिदमात को अल्लाह कबूल फरमाए और इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इसी तरह के इनके खिदमात को आइंदा कैंप में भी उम्मीद करता हूँ। आने वाले दिनों में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद।